Hello everyone, welcome to NCC YouTube channel. In this video, we are going to discuss the problem number 3 of internal reconstruction. This problem is referred from Nirali publication. We have already uploaded video number 1 on concepts of internal reconstruction and video number 2 and 3 about solve problems. Please watch video carefully. In this problem, there are some new adjustments like debenture holders which take stock and debtors in full settlement of their claim, and second is expenses of reconstruction. So what's effect on journal entry? So let's start. In this problem, there is balance sheet of Sitco Limited, and in liability side there is a share capital and cumulative preference shares and equity shares. Okay, 6% mortgage debenture, bank overdraft and creditors. On the asset side there is a goodwill, freehold property, plant, stock, debtors, profit and loss and cash at bank. And there the company goes the following scheme of capital reduction approved by the court, and some adjustment are given. First adjustment, the 5% cumulative preference shares to be reduced to rupees 75 per share fully paid up, and equity share to rupees 40 fully paid up. Second is debenture holders took over the stock in trade and booked up in full satisfaction of the amount due to them. Third adjustment is the goodwill account is eliminated, and fourth is the freehold property to be increased by 30%. Fifth, the value of plant and machinery to be depreciated by 33.13%, and last one is the expenses of reconstruction amount to rupees 3000. Okay, give the journal entries to record the above transaction and prepare the revised balance sheet as on 31st March 2020. What is the format of journal entry? So first we write here in the books of Sitco Limited journal entry. Okay, and format is date, particular, LF, debit and credit. Okay, so the first adjustment, the 5% cumulative preference shares to be reduced to rupees 75 per share fully paid up, and equity share to 40 fully paid up. First adjustment which is related to 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर टू बी रुपीज 75 शेयर. उसके बाद हम इक्विटी शेयर के एडजस्टमेंट करेंगे. फर्स्ट हम एडजस्टमेंट करेंगे 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. सो 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू रुपीज 75 पर शेयर. ओके, 75 पर शेयर, इट मीन्स प्रेफरेंस शेयर 75 तक हो गए. ओके, so face value of share in the balance sheet is given rupees 100. Okay, so how much face value of the preference share? That is paid up value or face value 100. Okay, and the number of share is 2000. How much? 2000 is a number of shares. So in the balance sheet there is a 2000 multiple 100, that is 2 lakh share capital, and in adjustment it is reduced to rupees 75. It is reduced to 75 means 100 से 75 तक हो गए. So we can minus rupees 75 from rupees 100. So amount is rupees 25. So 25 से decrease हो गए. Okay, 100 rupees is our face value. सो फेस वैल्यू रिड्यूस टू रुपीज 75 हो गई. सो हमारे प्रेफरेंस शेयर जो न्यू हमने क्रिएट किए वो 75 के हो गए और 25 से कम हो गए. ओके, समझ में आ गया. सो यहाँ प्रेफरेंस शेयर जो 2 लाख था वो 50,000 से कम हो गया. सो न्यू प्रेफरेंस शेयर्स विल बी इंक्रीज एंड ओल्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स विल बी डिक्रीज. Whenever old share capital is cancelled, its account goes to debit side. Okay, so यहाँ हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? सो जर्नल एंट्री करते वक्त हम क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो 2 लाख का बैलेंस है यहाँ हमने बैलेंस शीट में दिया है वो ओल्ड शेयर कैपिटल है. सो उसे हम
फुल्ली कैंसिल करेंगे, फुल्ली कैंसिल करेंगे। सो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो फर्स्ट इज डेट 1, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और अमाउंट आ जाएंगी। ओके, सो यहाँ हमने क्या किया कि ओल्ड कैपिटल फुल्ली कैंसिल किया और उसके बदले हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स क्रिएट हो गए वो 75 के हो गए, 75 के हो गए। सो हम यहाँ एंट्री करेंगे सेकेंड, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया, न्यू शेयर कैपिटल इशू किए। सो यहाँ हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। व्हेनेवर ओल्ड शेयर कैपिटल इज कैंसल्ड, उसे हमने क्या किया, डेबिट किया। और जब हम न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करेंगे तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसकी अमाउंट कैसे आ जाएगी, उसकी अमाउंट आ जाएगी 1,50,000। सो 1,50,000 क्यों आई, तो हम यहाँ 2,000 is our number of preference share which is given in the balance sheet and rupees 75 is our new preference shares capital की अमाउंट हो गई, फेस वैल्यू हो गई। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1,50,000। इसलिए ये अमाउंट क्या हो गई, न्यू प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट क्या हो गई, 1,50,000। और उसका जो डिफरेंस है 50,000, क्योंकि 2 लाख, क्योंकि वैल्यू 25 से कम हो गई ना। सो 2000 मल्टीपल 25, 2000 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 50,000। सो ये अमाउंट हम कैपिटल रिडक्शन को ट्रांसफर करेंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे टू कैपिटल रिडक्शन और अमाउंट आ जाएगी 50,000। ओके, समझ में आया। व्हेनेवर ओल्ड शेयर कैपिटल इज कैंसल्ड दैट अमाउंट गोज टू द डेबिट साइड। Okay, and whenever new preference shares is created, that amount goes to credit side and the difference is goes to the capital reduction account. So it is a profit to our company. Okay, our narration is being conversion of preference shares from rupees 100 to rupees 75 each. Okay, so हमने फर्स्ट जर्नल एंट्री की, फर्स्ट एडजस्टमेंट का फर्स्ट पार्ट देखा। और यहाँ उन्होंने क्या कहा है कि इक्विटी शेयर्स टू ₹40 फुल्ली पेड अप। सो यहाँ इक्विटी शेयर्स क्या हो गए, जैसे प्रेफरेंस शेयर की एडजस्टमेंट थी वैसी एडजस्टमेंट इक्विटी शेयर की। सो इक्विटी शेयर क्या हो गए, ₹40 फुल्ली पेड अप। ओके, सो in this balance sheet there is a 4,000 equity share of ₹100 each. So 100 ये फेस वैल्यू है, वो फेस वैल्यू कितनी की हो गई, 40 की हो गई। ओके, 100 माइनस 40। सो 100 का जो हमारा इक्विटी शेयर है वो हम कैंसिल करेंगे, उसके बदले हम 40 का न्यू शेयर इशू करेंगे और जो बैलेंस आएगा 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। ओके, सो यहाँ सेम एडजस्टमेंट, इक्विटी शेयर 4,000, नंबर ऑफ शेयर 4,000, 4,000 मल्टीपल 100 जो हमारी 4 लाख जो अमाउंट है ओल्ड शेयर कैपिटल, इसे हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे और उसके बदले हम 40 वाले न्यू शेयर इशू करेंगे और 60 का जो बैलेंस है वो हम कैपिटल रिडक्शन को ट्रांसफर करेंगे। व्हेनेवर फेस वैल्यू और paid up value of equity share is changed, then old equity shares are cancelled, they are debited and new equity shares are created. Whenever new equity share existed, they are credited. In this adjustment, all equity share capital of 4 lakh are cancelled, so we can debited the equity share. So entry is इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट इज ₹4 लाख। ओके, यहाँ बैलेंस शीट में जो ओल्ड फेस वैल्यू है, ओल्ड कैपिटल की वैल्यू है, वो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। उसके बदले हम क्या न्यू शेयर इशू करेंगे, इसलिए हम न्यू शेयर अकाउंट क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, इसलिए हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और अमाउंट आ जाएगी 1,60,000, क्योंकि न्यू अमाउंट कितनी है, 40,000, 40 रुपीज़ है। सो 4,000 is the number of share multiple 40, so 4,000 multiple 40 is equal to 1,60,000। ओके, और जो डिफरेंस है वो हम कैपिटल रिडक्शन को ट्रांसफर करेंगे, उसकी अमाउंट आ जाएगी 2,40,000। सो दिस इज अवर जर्नल एंट्री।
this journal entry is the same as above journal entry. Okay. And narration is, being equity shares are reduced from rupees 100 to rupees 40 per share. So this is our the journal entry. Okay. So second adjustment is, the debenture holders took over the stock in trade and the book debt in full satisfaction of the amount due to them. Debenture holder is our liabilities. Okay. They agree to take sundry debtors and stock in full settlement of claim. In balance sheet, there is 6% mortgage debenture of rupees 1 lakh, and on asset side there is a stock in trade of rupees 50,000 and debtors of rupees 40,000. So total amount is rupees 90 lakh. So 50,000 plus 40,000 is 90,000. So 90,000 की असेट जो है वो हम डिबेंचर होल्डर को पे कर रहे. So how much amount of debenture holder is 1 lakh. Okay, so 1 lakh is a debenture holder and 90,000 is our assets. So debenture को हम क्या करेंगे, 90,000 के asset हम पे करेंगे. Okay, so they did not claim on balance of rupees 10,000. So यहाँ 10,000 का बैलेंस दिखाई दे रहा है डिबेंचर का, लेकिन वो उसका क्लेम नहीं कर रहे. So they did not claim on rupees 10,000. It means they sacrifice of rupees 10,000. So 10,000 is our profit and goes to the capital reductions accounts. So यहाँ हम डेटर्स को 90,000 के असेट्स देने वाले हैं और 10,000 हम नहीं देंगे. So हमारी जर्नल एंट्री हो जाएंगी 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट ऑफ रुपीज 1 लाख. यहाँ हम 1 लाख लिखेंगे क्योंकि 6% डिबेंचर हमने क्या किया, कैंसिल किया. हमारी लाइबिलिटीज क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी. इसलिए हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. और उसके बदले हम उन्हें क्या देंगे, टू स्टॉक इन ट्रेड. बैलेंस शीट में है स्टॉक इन ट्रेड 50,000 एंड टू डेटर्स 40,000. ओके, और जो बैलेंस है वो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. और हमारी नरेशन आ जाएंगी, बीइंग डिबेंचर टू कोर स्टॉक एंड डेटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम एंड बैलेंस गोज टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. सो दिस इज अवर थर्ड जर्नल एंट्री. ओके, our third adjustment is, the goodwill account is eliminated. So इसके एडजस्टमेंट हम लास्ट में करेंगे. उसके बाद हम फोर्थ वाले एडजस्टमेंट देखेंगे. The freehold property to be increased by 30%. Whenever assets increase, they are debited. Okay, या freehold property 30% से increase हो गई. So in balance sheet, freehold property is rupees 2 lakh. This is our freehold property of rupees 2 lakh. So 2 lakh is our property और वो 30% से increase हो गई. So यहाँ अमाउंट आ जाएगी रुपीज 60,000. कितनी आ जाएंगी, रुपीज 60,000. ओके, सो 60,000 से प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज हो गई. सो यहाँ हम क्या करेंगे कि whenever our assets increase, they are debited. Okay, whenever assets are increased, they are debited and the balance goes to the capital reduction account. क्योंकि यहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है. कैपिटल रिडक्शन जब हम क्रेडिट करेंगे इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है. ओके, सो यह एंट्री आ जाएगी फॉर्मेट. फर्स्ट, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट ऑफ रुपीज 60,000 to capital reduction account rupees 60,000. Our narration is, being freehold property is increased by 30%. Okay, this is our narration. Okay, समझ में आया. Whenever asset is increased, asset account is debited and balance goes to capital reduction account. Next adjustment है, the value of plant and machinery to be depreciated by 33.13%. सो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. सो ये भी एडजस्टमेंट जब हम गुडविल अकाउंट के एडजस्टमेंट करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, उसी वक्त हम
प्लांट एंड मशीनरी की भी एडजस्टमेंट करेंगे। सो एक साथ हम ये एडजस्टमेंट करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। उसके बाद हम लास्ट वाले एडजस्टमेंट देखते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटेड ₹3000। सो एक्सपेंसेस कितना हो गया, 3000। Some expenses are incurred while reconstruct the company. So 3000 is our reconstruction expenses which are paid by the company. So यहाँ हम पहले क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। Whenever expenses paid, the entry is reconstruction expenses account debit and amount is ₹3000. Amount is ₹3000 and to bank account, क्योंकि पैसा हमने पे किया है। सो नरेशन इज बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। सो दिस इज अवर जर्नल एंट्री ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लास्ट एंट्री करेंगे। सो यहाँ अब हम क्या करेंगे कि कैपिटल रिडक्शन का कुछ बैलेंस यहाँ लिखेंगे हम। यहाँ मैंने एक रिडक्शंस अकाउंट क्रिएट किया है। तो इस पर जो जो हमने रिडक्शंस की अमाउंट है वो हमने लिखी है। देखिए, फर्स्ट जर्नल एंट्री में ये जो रिडक्शन अमाउंट है 50,000 कैपिटल रिडक्शन की, वो हमने वहाँ लिखी है। उसके बाद सेकेंड जर्नल एंट्री की जो अमाउंट है 2,40,000 वो हमने वहाँ लिखी है। उसके बाद थर्ड वाली जो है 10,000 वो भी हमने लिखी है। सो पहले हम देखेंगे 50,000, 2,40,000, 10,000 ये हमने रिडक्शन अकाउंट को ट्रांसफर किए। ओके, सो यहाँ हमने जो कैपिटल रिडक्शन जो क्रेडिट था 5% प्रेफरेंस शेयर 2,40,000 और डिबेंचर की जो अमाउंट है वो हमने यहाँ क्रेडिट लिखी है। उसके बाद जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की अमाउंट है 60,000। ओके, ये भी हमने क्या किया, क्रेडिट किया। ओके, सो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज ₹60,000। सो कैपिटल रिडक्शन की टोटल हो गई 3,60,000। 50,000 प्लस 2,40,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000। सो हमारे पास 3,60,000 का क्रेडिट बैलेंस रिडक्शन का है। सो आवर जर्नल एंट्री इज 6 वाली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 3,60,000। ओके, सो उसमें से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जो भी गुडविल है, प्लांट एंड मशीनरी है, उसे हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। सो पहले फर्स्ट हम डिक्रीज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। सो प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट जो बैलेंस शीट में दी गई है 2,40,000, दिस इज अवर फिक्स्ड असेट। सो ये असेट हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ओके, उन्होंने हमें बताया नहीं लेकिन हम भी ये डिक्रीज करेंगे। ओके, उसके बाद हम डिक्रीज करेंगे टू गुडविल। सो गुडविल यहाँ जो एडजस्टमेंट थी ना, हमने बताया था कि गुडविल अकाउंट इज एलिमिनेटेड। सो रिडक्शन की जो अमाउंट है ना, जो प्रॉफिट मिल गया कंपनी से, उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस हमने डेबिट क्रेडिट किया। उसके बाद गुडविल के जो अमाउंट है ना 15,000 वो भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट डिप्रिसिएट, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो अमाउंट है ना वो डिप्रिसिएट हो गई 33.13%। सो प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट कितनी है, 3 लाख। ओके, सो 3 लाख में हम 33.13% निकालेंगे, उसकी अमाउंट आ जाएगी 1। सो यहाँ आप कैलकुलेट कीजिए, इसकी अमाउंट आ जाएगी 1 लाख। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा कि 33.13 कैसा निकलते हैं तो उसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अमाउंट इज 1 लाख। ओके, उसके बाद हम रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस जो थे हमारे, जब हमने रिकंस्ट्रक्शन किया तो अमाउंट थी 3,000, तो वो भी हम यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, व्हेनेवर रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आर क्रिएटेड they are also reduced from the capital reductions account. ओके, उसके बाद जो भी बैलेंस रहेगा
जो अब हम रिडक्शन अकाउंट पर जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि ये जो अमाउंट है वो अमाउंट हमने क्रेडिट यहाँ की है। तो रिडक्शन अकाउंट में जाएंगे हम। सो दिस इज अवर रिडक्शन अकाउंट। ओके, सो हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट किया, गुडविल डेबिट किया, प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट डेबिट की, रिकंस्ट्रक्शन की अमाउंट डेबिट की, और 3,60,000 में से ये सब बैलेंस हमने माइनस किया। सो दैट अमाउंट इज कॉल्ड द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो यहाँ हम लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट एंड अमाउंट इज ₹2,000। ओके, एंड नरेशन इज being the entry to write off profit and loss, goodwill, plant and machinery, reconstruction expenses, and balance transferred to capital reserve account. So this is our the sixth journal entry. Okay, उसके बाद we prepare the balance sheet. Okay, so what is the format of balance sheet? Balance sheet as on 31st March 2021, and format is particulars, amount. Okay, so equity and liabilities, this is our heading, and shareholders funds. So यहाँ हम देखेंगे कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो थे वो 2 लाख थे और 4 लाख के इक्विटी शेयर थे। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज ₹1,50,000 एंड इक्विटी शेयर कैपिटल इज ₹1,60,000। सो हमारे न्यू प्रेफरेंस शेयर्स हो गए 1,50,000 के और इक्विटी शेयर हो गया हमारा 1,60,000 का। सो हम जाएंगे बैलेंस शीट में। सो हम लिखेंगे 2005% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹1,50,000, क्योंकि एडजस्टमेंट में क्या था कि 75 के प्रेफरेंस शेयर्स हो गए न्यू शेयर्स। सो 2000 मल्टीपल 75 इज इक्वल टू 1,50,000 एंड 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹40 इज फुल्ली पेड अप एंड कॉल लिप्स। सो इसकी अमाउंट आ जाएगी 1,60,000। दिस इज अवर शेयर्स कैपिटल। ओके, सो इसकी टोटल आ जाएगी 3,10,000। उसके बाद फॉर्मेट आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, और जो हमारा कैपिटल रिजर्व था वो 2000, वो हम यहाँ लिखेंगे, उसकी टोटल आ जाएगी 2000। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे करंट लायबिलिटीज, क्योंकि बैलेंस शीट में जो मॉर्गेज डिबेंचर है उसको हमने पे किया, सो यहाँ नहीं आ जाएंगे, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स ये हमारी करंट लायबिलिटीज है, और इसके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं बताया। सो एज इट इज उसकी अमाउंट आ जाएगी बैंक ओडी 50,000। ओके, एंड क्रेडिटर्स इज ₹1 लाख। सो ये जो अमाउंट है वो ऐसे ही आ जाएगी, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आ जाएगा, और टोटल आ जाएगी 1,50,000। एंड बैलेंस शीट की जो टोटल हो जाएगी वो आ जाएगी 4,62,000। 3,10,000 इज अवर शेयर कैपिटल, 2,000 इज अवर रिजर्व एंड 1,50,000 इज अवर करंट लायबिलिटीज। सो 4,62,000 इज अवर टोटल ऑफ लायबिलिटी सेट। उसके बाद हम लिखेंगे असेट्स। असेट्स में फर्स्ट आ जाएगा नॉन करंट असेट्स। सो नॉन करंट असेट में फर्स्ट वन इज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। यहाँ गुडविल नहीं आ जाएंगे, क्योंकि गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, उसे हमने एलिमिनेट किया। उसके बाद आ जाएगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2 लाख, और उसकी एक एडजस्टमेंट है ना डी वाली, दिस वन, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी इंक्रीज बाय 30%। सो यहाँ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए 2 लाख में हम ऐड करेंगे 60,000। सो 2,60,000 इज अवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी इट्स आल्सो डिप्रिसिएट बाय 33.13%। सो 1 लाख से हमारी प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सो 3 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 2 लाख इज अवर प्लांट एंड मशीनरी। और उसके बाद रहेगा कैश एट बैंक, और उसके बाद हम स्टॉक एंड ट्रेड और डेटर्स, ये दोनों अमाउंट हम यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड एंड डेटर्स आर पेड टू दी डिबेंचर होल्डर्स, और प्रॉफिट एंड लॉस भी एलिमिनेट हो गया। सो यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा कैश एट बैंक, उसे हम करंट असेट में ट्रांसफर करेंगे। अमाउंट आ जाएगी 2,000, क्योंकि 5,000 ये हमारी अमाउंट है कैश एट बैंक की। तो हमने क्या किया, हमने रिकंस्ट्रक्शन का जो एक्सपेंसेस था वो हमने बैंक अकाउंट से किया। सो
Remaining amount 2000 is goes to the cash at bank account. So total is 2000. Okay. And the total asset is rupees 4,62,000. 4,60,000 plus 2000 इसकी total हो गई 4,62,000. So here is a balance sheet. Okay. I hope you like video.